سوچ کے مارتھا قیامت کو کیا سمجھ رہی ہے؟ کوئی ایک دن سمجھ رہی ہے، ایک ایسا دن آئے گا جس دن قیامت ہوگی، اور قیامت والے دن وہ کہہ رہی ہے کہ لازر جی اٹھے گا۔ تو بہت سے لوگ وہ دن کو قیامت جانتے ہیں، وہ حالات کو، واقعے کو قیامت جانتے ہیں۔ اور مارتھا بھی ویسے ہی سوچ رکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ کیا ہوگا، قیامت میں آخری دن، قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ اس کے نزدیک قیامت جو ہے اس کا ایک دن ہے، اس کا ایک دن ہے۔ اور یسوع نے جو سکھایا وہ سکھایا کہ قیامت اس کو دن نہیں جاننا، بلکہ کیا کہا اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ یہاں پر قیامت دن نہیں، بلکہ قیامت خدا کا بیٹا خداوند مسیح یسوع ہے۔ اس نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ قیامت یسوع مسیح ہے، قیامت یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح ہے، کیونکہ قیامت کے ساتھ، قیامت اس کا مطلب جو ہے وہ کیا مل گیا؟ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نہ مرے گا۔ قیامت کا مطلب یہ ہے ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہے گا۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد موت نہ ہوگی۔ قیامت کا مطلب یہ ہے اگر کوئی قیامت میں آ گیا، یعنی اس کا مطلب مسیح میں آ گیا، اسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ دنیا کے لیے پہلی بات کہوں گا، شیطان کے لیے لفظ قیامت بربادی ہے۔ شیطان کے لیے لفظ قیامت بربادی ہے۔ شیطان کے لیے لفظ قیامت تباہی ہے۔ شیطان کے لیے لفظ قیامت، اسے پتا ہے شیطان کے لیے لفظ قیامت ہمیشہ کا عذاب ہے۔ شیطان کے لیے لفظ قیامت بڑی تکلیف، بڑی مصیبت ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن جو مسیح کے ہیں ان کے لیے قیامت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ان کے لیے قیامت وہ ابد تک آرام ہے۔ ان کے لیے قیامت وہ نور میں داخلہ ہے۔ ان کے لیے قیامت خوشی ہے۔ ان کے لیے قیامت اطمینان ہے۔ ان کے لیے قیامت ان کے سب دکھوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے رہائی ہے جو مسیح کے ہے۔
ضرورت ہے کہ ہم قیامت کے اس رخ کو جانے جو مسیح میں ہمیں حاصل ہے. دنیا جس چیز کو قیامت کہتی ہے، اصل میں ان کو وہاں پہ قیام ہی کوئی نہیں ہے. قیامت ہے ہی مسیح. اس لیے دنیا نے مصیبت کا نام قیامت رکھ دیا. دنیا نے مصیبت کا نام قیامت رکھ دیا. اگر کسی پہ مصیبت آ جائے، اگر کسی علاقے میں طوفان آ جائے، اگر کہیں پہ سیلاب آ جائے، اگر کہیں پہ زلزلہ آ جائے اور اموات ہو جائیں، تو کہتے ہیں جی قیامت گزر گئی، قیامت گزر گئی. اس جہان کے سردار نے، شیطان نے، ابلیس نے لوگوں کے ذہنوں کو، ان کی عقلوں کو بند کر دیا. دنیا قیامت سے ڈرنے لگی، ان کے ذہن بند ہو گئے. ڈکشنریوں نے چھوٹی اور بڑی مصیبت کو قیامت صغیرہ، قیامت کبیرہ کہنا شروع کر دیا. اس لیے کہ ان کے پاس کوئی قیامت میں امید نہیں. لیکن ہماری جو امید ہے وہ قیامت میں، یعنی مسیح میں. اور ہمیں کیا ہو جائے گا جی؟ قیام ہو جائے گا، قیام ہو جائے گا، ہم قائم ہو جائیں. سیکھنے کی جو بات ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ہر مخلوق کا خاتمہ صرف ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، اور وہ ہے ذات خدا. وہ ہے خدا جو نور ہے، اور خدا کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو ہمیشہ تک رہے. جس کے ساتھ مخلوق آ گیا لفظ، خدا کے سوا باقی سب مخلوقات ہیں، اس کا خاتمہ ہونا ایک نہ ایک دن وہ لازمی ہے. اور آپ کی کلیسیا میں بھی میں جو ہے وہ یہ سرمن دے چکا ہوں، کئی بار میں یہ باتیں بتا چکا ہوں کہ یہ جو عالم ہے، مٹی کا عالم، مخلوق عالم، اس کا خاتمہ لازمی. عالم ارواح، مخلوق عالم، مخلوق کا خاتمہ لازمی. ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایک ذات ہے، ایک عالم ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اور وہ ہے عالم والا. اور عالم والا کی ذات، ذات خدا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. اور خدا نے یہ چاہا کہ میں نے جو انسان کو خلق کیا، میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں. خدا نے انسان کو بنایا اور اس سے محبت رکھی. اس محبت میں اس نے یہ چاہا کہ میں انسان کو نجات دوں. تیتس کے خط میں لکھا ہے کہ جب اس کی محبت اور اس کی الفت وہ ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں نجات دیتا ہے. کس سے اس نے نجات دی؟ دنیا نے نجات کو بڑا ہلکا سا لے لیا.
दुनिया ने यह समझा कि मुझसे जो गुनाह हुए उस गुनाह को खुदा ने माफ कर दिया, बस यहीं तक जो है वो नजात, दुनिया की समझ में यही नजात आई। इससे ऊपर जो है वो लोग जान ही ना पाए। यही सोचते रहे गुनाह हो गया माफ कर दे, गुनाह हो गया सजा ना देना। वो सिर्फ ये सोचते रहे सजा नहीं मिलेगी तो नजात है। इससे ऊपर उन्होंने खुदा की मोहब्बत को जाना ही नहीं, उन्होंने खुदा को पहचाना नहीं। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और बेटा इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और जिस जिंदगी का जिक्र बेटे के साथ है, लिखा है कि वो जिंदगी वो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। उस जिंदगी के ताल्लुक से लिखा है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगियों का, वो आदमियों का नूर थी। तो वो जिंदगी है जो मिटने वाली नहीं, वो जिंदगी है जिसके लिए कहा गया है, किताब मुकद्दस कहती है हमेशा की जिंदगी। इसका मतलब है वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। वो जिंदगी वो तगय्युर पजीर नहीं है, वो जिंदगी वो ला तब्दील है। वो जिंदगी वो कभी वो बदलती नहीं, वो ला तब्दील, उसे क़यामा है, उसे क़यामा है। और वही जिंदगी कौन रखता है? बेटा। बेटे की वो जिंदगी, बेटा वो जिंदगी रखता, नूर जिंदगी रखता है। और खुदा का बेटा जो खुदा है वो मुजस्सम हुआ। इससे पहले कि मुकद्दसा मरियम के बदन से वो पैदा हो, उसके लिए किताब मुकद्दस यूं कहती है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। जब बेटे का जिक्र होता है तो बेटे के लिए जो बात लिखी है कि वो तमाम मखलूकात से पहले। बेटा मखलूक नहीं है, बेटा मखलूक नहीं है, बल्कि वो मखलूकात से पहले है। बादों ने कहा वो पहली मखलूक नहीं, बल्कि मखलूकात से पहले उसे कहा गया मौलूद है, मखलूक नहीं। ना वो मसनू है, ना वो मखलूक है, बल्कि वो मौलूद है। यानी वो खुदा में से निकला। उसने कहा मैं खुदा में से निकला और आया। और मैंने जो बात मैं समझा रहा हूं, एक ही जात है जिसका कोई आखिर नहीं, जो अजली और अबदी है। एक ही जात है जो शुरू से पहले अजल से और जो आखिर तक के बाद अबद तक है। और जब हम बेटे को देखते हैं तो बेटा तब से नहीं, जब से वो मुजस्सम होके आया, बेटा अजल से है, अजल से है। वो ज़ाते खुदा, आइन खुदा की ज़ात, वो खुदा में से निकला और आया है। वो शख्स जो इलाही है, वो शख्स जो नूर है, वो शख्स जो हमेशा से है, वो शख्स जो अजली है, वो हमारे लिए, हमारे दरमियान में आने के लिए मुकद्दसा मरियम के बदन से वो पैदा हुआ।
यीशु मसीह नूर है ना, उसने ये कहा मैं दुनिया का नूर होकर आया। यीशु मसीह कलमा खुदा है ना, उसके लिए लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। और मुजस्सम होने से पहले उसने क्या किया? सब चीजें किसके सबब से हैं? उसी के सबब से हैं। वो सब चीजों से पहले है, वो सब चीजों से पहले, सब चीजों को खलक करने वाला कलमाए खुदा खालिक, वो मुजस्सम होकर आया, वो मुजस्सम होकर आया। और उसने क्या किया जी? जब वो मुजस्सम होकर आया, किस लिए आया? वो इसलिए आया कि हमें वो हमेशा की जिंदगी दे, वो वाली जिंदगी दे दे जो अज़ल से है, हमेशा से है। अरबों खरबों साल पीछे चले जाएं, उससे भी पहले, उससे पहले चले जाएं, उससे भी पहले, हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। वो जिंदगी जिसका कोई खात्मा नहीं है, वो जिंदगी, वो जो है वो हमें बख्शता और देता है। जो कोई उस जिंदगी में दाखिल हो गया, उसे क़याम मिल गया, उसे हमेशगी मिल गई। वो हमेशा तक खुदा के घर में हमेशा तक वो रहेगा, उसे हमेशगी मिल गई, उसके साथ हमेशगी जुड़ गई। वो अबद तक कभी हलाक ना होगा, कभी हलाक ना होगा। और जब वो इंसान बन के आ गया, उसने हमारे दरमियान में बड़े मौजे किए, लेकिन एक बड़े काम के लिए वो आया था। वो इस काम के लिए आया था कि हमारा कफारा दे, हमारा कफारा दे। क्योंकि वो जिंदगी पाने के लिए जो हमेशा से है, हमेशा तक रहेगी, हमें पाकीज़गी की जरूरत है, क्योंकि वो जिंदगी पाक है। और यीशु का लहू है जो हमें वो पाकीज़गी बख्शता है। यीशु के लहू के सिवा वो पाकीज़गी हासिल नहीं हो सकती है। यीशु का खून, यीशु का लहू है जो वो पाकीज़गी देता है, और उसने हमें अपने लहू से धोकर हमेशा की जिंदगी बख्श दी, नई जिंदगी दे, और उसी जिंदगी में क़यामत है। उसी जिंदगी में क़यामत। जब भी क़यामत का जिक्र होगा तो हमेशा की जिंदगी का जिक्र होगा। और यहां पर भी यीशु मसीह क्या कहता है? उसने कहा क़यामत, और आगे क्या बात लिखी है? और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। गौर करना जी, क़यामत ये नहीं है कि इंसान के एतबार से हमेशा जिंदा रहे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, बड़े सादा अल्फाज में मैं बयान करूंगा। क़यामत ये नहीं है कि इंसान हमेशा जिंदा रहे, ये क़यामत है नहीं। क़यामत के लिए उसने जो दावा किया है, इंसान क़यामत नहीं। उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं, जो कहता है मैं हूं,
وہ الہی شخص ہے. وہ کون ہے جی؟ الہی شخص ہے. وہ خدا کا بیٹا خدا ہے. بیٹے کے لیے وہ کہتا ہے کہ تیرا تخت عبدالآباد رہے. اے خدا تیرا تخت عبدالآباد ہمیشہ تک. خدا کے بیٹے کا جو تخت ہے وہ ہمیشہ تک ہے. جس کا تخت ہمیشہ تک ہے وہ خدا ہے. اور خدا ہی قیامت اور زندگی. بندہ قیامت اور زندگی نہیں. خدا کا بیٹا جو خدا ہے وہ قیامت اور زندگی. اور جو کوئی خدا میں آئے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اس میں اس طریقے سے مرحوم ہے. اس کی جو آخری 2-3 آیات ہیں اس میں لکھا ہے خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے کہ ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں. حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی یعنی قیامت یہی ہے. یہی ہے جو مسیح میں آ گیا اسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی. اب اس وقت ان لمحوں میں ان گھڑیوں میں ان گھنٹوں میں ان دنوں میں جس کسی نے یسوع کو قبول کیا. یہاں پر جو بات لکھی ہے ایک تو لکھا ہے جو مر جائے ٹھیک ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. اور لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جو ہے جو زندہ ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے. جو زندہ ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. اب جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا جو کوئی یسوع کو قبول کرے گا جو کوئی یسوع مسیح میں آ جائے گا اسے کیا مل جائے گی؟ اسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی. اسے قیام مل گیا. اب تو مل گیا روح میں. ایک اور وقت آ رہا ہے جس میں بدن کو بھی قیام ملے گا. ابھی بدن کو تو قیام نہیں ملا. ابھی تو قیام مل گیا. کس کو مل گیا تھی؟ روح میں. ہم جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہوا ہے ہم جو مسیح میں ہیں ہم جو مسیح پر ایمان لائے ہیں ہم جنہوں نے خدا کے بیٹے سے ہمیشہ کی زندگی کو لیا اور ریسیو کیا ہے وہ کیا؟ وہ تو قیامت میں داخل ہو گئے روح میں. بدن کا ابھی قیامت میں داخل ہونا باقی ہے. بدن کیسے قیامت میں داخل ہوگا؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب وہاں پر لکھا ہے کہ ایک روز آ رہا ہے. اس روز جو ہے وہ آخری نرسنگا پھونکا جائے. اس روز جو آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو لکھا ہے کہ مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے. سن رہے ہیں نا کیا لکھا ہوا ہے؟ مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم جو جیتے ہیں کیا ہو جائے گا جی؟ بدل جائیں گے. یہ ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہو جائے گا. ہم جو جیتے ہیں یہاں پہ لکھا نا جو جیتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا.
लेकिन ये जीना इंसान के एतबार से नहीं। यहां पे आके बाजों को कोई मुश्किल लगेगा जो बातें मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरा जुमला रट लें जी। हमारे टीचर थे, वो कहा करते थे जब समझ ना आ रही हो तो रटा लगा लो और उसको सोचते रहो, समझ आ जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, क़यामत जो है वो इंसान के एतबार से नहीं है हमारी, क़यामत हमारी जो है वो खुदा के एतबार से है। यानी इसका मतलब यह है कि इंसान होते हुए हम हमेशा नहीं रहेंगे, हम ज़ाते खुदा में शरीक होके हमेशा रह सकते हैं, क्योंकि एक ही है जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। ठीक है जी? फिर से मैं ये बात कह रहा हूं, इंसान होते हुए ज़ाते इंसानी में हमेशा नहीं रह सकते हैं, बल्कि क्या होगा जी, हम मसीह में होकर, ज़ाते खुदा में होकर हमेशा तक रहेंगे। क्योंकि उसने कहा मैं हूं वो क्या। रोमियो 6 बाब, उसमें इस तरीके से लिखा है, 6:6 मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, जुबानी पढ़ रहा हूं। लिखा है, हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए और हम आगे को गुनाह की गुलामी में, गुनाह की गुलामी से निकल गए। कैसे निकल गए? पुरानी इंसानियत मसीह के साथ मसलूब होगी। मसीह मसलूब हुआ तो मसीह के साथ हमारी जो पुरानी इंसानियत है वो भी क्या हो गई? मसलूब हो गई। पुरानी इंसानियत हमारी, इंसान मसलूब हो गया, मसीह मरा, उसके साथ हमारी पुरानी इंसानियत वो भी मर गई, इंसान मर गया, मसीह के साथ मसलूब हुआ। इसलिए रसूल कहता है कि मैं जिंदा ना रहा। उसने ये कहा कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, फिर वो कहता है मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मसीह यीशु जब मसलूब हो रहा था हमारे गुनाहों की खातिर, तो लिखा हुआ है रोमियो के 6 बाब के अंदर ही आगे चल के ये बात लिखी है, मसीह जो हुआ तो वो गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता। ये जुमला याद रहेगा जी। मसीह जो हुआ किस एतबार से हुआ? जरा बता दें किस एतबार से हुआ? गुनाह के एतबार से। अब जो जीता है तो किस एतबार से जीता है? खुदा के एतबार से। फिर से जरा ये बातें जो है वो आपको याद रहेंगी तो मेरी बात की समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। मसीह जो हुआ गुनाह के किस एतबार से हुआ? गुनाह के एतबार से। उसने हमारे गुनाह उठाए थे ना, हमारे गुनाह उठा के सलीब के ऊपर चढ़ गया, तो गुनाह के एतबार से एक बार हुआ। मगर अब जो जीता है तो किस एतबार से जीता है? खुदा के एतबार से। अच्छा, ये बात जो है ये भी एक याद रख लेने वाली बात है। जब हम बोलते हैं ना मसीह, तो खुदा का बेटा जो खुदा को खुदा है और इंसान है। जब हमने कहा मसीह, तो मसीह क्या है? खुदा है और इंसान है। जब हम कहते हैं ना खुदा का बेटा, तो खुदा का बेटा खुदा है और मसीह खुदा है और इंसान है। फिर से मसीह खुदा है और सारे भी बोल रहे हैं ना भाई, ये तो बड़ा जो है वो जरूरी टॉपिक है। जरा इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मुझे ये जो बातें हैं ये रटानी पड़ेंगी। मसीह क्या है? खुदा है और इंसान। फिर से बोले जी, मसीह खुदा है और इंसान। अब मसीह जो सलीब पर हुआ तो इंसान के एतबार से हुआ। मसीह जो सलीब पर मरा, इंसान ने गुनाह किया तो इंसान के गुनाहों की खातिर वो सलीब पर मरा, तो गुनाह के एतबार से वो एक बार हुआ, बार बार नहीं वो मरेगा, एक बार हुआ। मगर अब जो जीता है वो किस एतबार से जीता है? किस एतबार से? एतबार से।
इंसान के एतबार से जी रहे हैं, वहां पे लिखा है इंसान के एतबार से। उसको जरा खोल लेते हैं, रोमियो 6वां बाब, रोमियो 6वां बाब। और यहां पर इस तरीके से लिखा है 11वीं आयत से बल्कि 10वीं आयत, क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो किसके एतबार से जीता है? खुदा के एतबार से जीता है। जब वो कहता है ना क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, इंसान के एतबार से नहीं कह रहा, किस एतबार से कह रहा है? क्योंकि वो इलाही शख्स है, क्योंकि वो खुदा है, इसलिए वो किस एतबार से कह रहा है? खुदा के एतबार से। क़यामत कहां पे है? खुदा में। जिंदगी कहां पे है? खुदा में। हमेशगी कहां पे है? खुदा में। अबदियत कहां पे है? खुदा में। अज़लियत कहां पे है? खुदा में। क़यामत कहां पे है? खुदा में। इंसान में नहीं है। तो इंसान के एतबार से तो क्या हुआ जी? मसीह मर गया, और अब जो जीता है तो वो फिर नहीं मरने का। कौन सी जात है जो नहीं मरती? खुदा की जात। खुदा की जात, ज़ाते खुदा, वो हमेशा से है, वो नहीं मरती। लिखा अब जो जीता है तो किस एतबार से जीता है? खुदा के एतबार से। सलीब पर मसलूब हुआ, मर गया, उसे दफन हुआ। जब वो दफन हुआ, जब वो मरा, मैं भी उसके साथ मर गया, आप भी उसके साथ मर गए। जो ईमान ले आते हैं, जो ईमान ले आए कि मैं भी उसके साथ मसलूब हुआ, जैसे रसूल ईमान ले आया, मैं भी उसके साथ मर गया। रसूल ने कहा मैं मर गया, हम भी ईमान ले आए, मैं मर गया। आप में से कितने ईमान ले आए कि जब मसीह मसलूब हुआ तो मैं भी उसके साथ मसलूब हो गया, हो गई हूँ? आज तो दिखा सकते हैं जी, ओ हालेलुया। जब मसीह मसलूब हुआ तो हम भी उसके साथ मसलूब हुए। जब वो सलीब के ऊपर मरा, हम भी उसके साथ सलीब के ऊपर मर गए, अपने ईमान के वसीले से। ईमान हकीकत है, ईमान हकीकत है, ईमान सच्चाई है, और ये खुदा की बातें हैं, ये बंदे की अकल से बाला हो जाती हैं, लेकिन ईमान से जानी जाती हैं। मसीह मरा और उसके साथ जो है वो मैं भी मर गया, मसलूब हो गया। मसीह कब्र में रखा गया और मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और वो जो उठा है वो जलाल में उठा है, वो जो उठा है वो नूर में उठा है, वो जो उठा है वो हमेशगी में उठा है, वो जो उठा है वो मौत पर गालिब है, वो जो उठा है वो कब्र पर गालिब है, और मरकूम है कि वो अब नहीं मरने का। वो अब नहीं मरने का, इसलिए कि वो जो जी उठा उसका बदन कैसा हो गया जी? जलाली। जिस बदन को मार पड़ी थी, जिस बदन को कोड़े लगे थे, जिस बदन को सताया गया था, जो बदन सलीब उठा के मसलूब हुआ था, जब वो जिंदा हुआ तो वो बदन जलाल में उठा। और जिस तरीके से यीशु जलाल में उठा, आज तक कोई नहीं उठा। यीशु से पहले कोई नहीं उठा, यीशु के बाद कोई नहीं उठेगा। अगर मसीह में ना हो तो वो ही उठेगा जो मसीह में है। जलाल में कोई नहीं उठेगा, सिर्फ वो उठेगा जो मसीह में है। मुर्दे तो जिंदा हुए थे, पहले भी हुए, मसीह से पहले भी मुर्दे जो है वो जिंदा हुए थे। लाजर जिसका अभी जिक्र पढ़ रहे हैं, मैंने खैर कहानी नहीं पढ़ी क्योंकि मेरा इस कहानी के ऊपर वाज ही नहीं था, मेरा वाज ही था क़यामत और जिंदगी के ऊपर, इसलिए वहां तक ही मैंने पढ़ा। 4 दिन का लाजर जिंदा किया गया, याईर की बेटी जिंदा की गई, बेवा का बेटा जिंदा किया गया,
पिछले पुराने अहदनामा में भी देखते हैं मुर्दे जिंदा किए गए, एलिया अलीशा ने मुर्दे जिंदा किए, मुर्दे जिंदा हुए। एक मुर्दा तो अलीशा की हड्डियों के साथ टकरा के जिंदा हो गया, मुर्दे वहां पे भी जिंदा हुए। ये सब उठे इंसानियत में, ये सब रहे इंसान होकर, ये सब जिए बशरियत में। लेकिन हम जो मसीह के साथ मर गए, पहले सबक दे रहा था ना कि कहो मर गया, लेकिन अब जो मैं जीता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीले से, और मेरा ईमान क्या है वो मैं पढ़ रहा हूं, इसको सुने। लिखा हुआ है, पहले मैं पढ़ रहा हूं जो 10वीं आयत, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से। जब ये कहा जाता है ना खुदा के एतबार से, इसका मतलब है वो खुदा में दाखिल है। इसका बदन भी किस में दाखिल हो गया? उसका बदन भी उलूहियत में दाखिल हो गया। बदन किस में दाखिल हो गया? उलूहियत में दाखिल हो गया। अब उसका बदन नहीं मरने का, अब उसका बदन नहीं सताया जाने का, अब उसका बदन तकलीफ नहीं पाने का, क्योंकि किस में दाखिल हो गया? वो बदन को भी लेके वो उलूहियत में वो दाखिल हो गया, उसने बशरियत को उलूहियत में दाखिल कर दिया। और लिखा है इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। तो समझो क़यामत में हो, और सच्चाई है रूह में कहां पे हो? मसीह को कबूल करते ही, तो मसीह ने कहा कभी ना मरेगा। किस जगह पे हो? कभी ना मरने की जगह पे हो। जो जीतता है, जो मुझ पर ईमान लाएगा, जो जीतता है, लिखा कभी ना मरेगा। कहां पे हो? कभी ना मरने की जगह पे। क्योंकि अगर अब इस वक्त यीशु मसीह आ जाता है और वो पिछला नरसिंगा फूंका जाता है, तो मुर्दे तो गैर फानी हालत में उठेंगे, तुम कभी ना मरोगे। हम सब क्या होंगे? बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? जैसा बदन मसीह का जलाली हुआ, वैसे ही हम भी क्या हो जाएंगे? जलाली। वैसे हम भी जलाली हो जाएंगे। हम जो है रूह में तो जलाल पा चुके, रूह में जलाल पा चुके, बदन का जलाली होना अभी बाकी, आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा। लेकिन याद रखो जी, जो मसीह में आ गया वो क़यामत में आ गया, क्योंकि उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं ये नहीं कह रहा हूं जिस तरीके से बातों ने कहा क़यामत तो हो चुकी और फिर क़यामत जो है वो नहीं होने वाली। मैं ये बता रहा हूं कि हमें रूह में तो क्या मिल गया, बदन को क्या मिलना भी बाकी है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा। 1000 साला बादशाही हमने करनी है, और जब हमने 1000 साला बादशाही करनी है तो जलाली बदनों के साथ करनी है। अभी भी हम बादशाही कर रहे हैं, अभी हम जलाली रूह के साथ बादशाही कर रहे हैं, और उस वक्त भी हम बादशाही करेंगे और जलाली रूह के साथ हमारे बदन भी क्या हो जाएंगे? जलाली। वो वक्त पढ़ना चाहता हूं, 20वां बाब मुकाशमत। मैंने इसमें बड़ी सादा सादा बातें की, कोई मुश्किल वाली थियोलॉजी वाली बातें नहीं की। पिछली बार एक भाई मुझे कह रहा था भाई जी आपने बड़े मुश्किल जुमले इस्तेमाल किए, और मैंने कोशिश की है कोई मुश्किल लफ्ज़ ना बोलो। ठीक है जी, मेरी बातें सबको समझ आई है। 20वां बाब, चौथी आयत से, वैसे तो पहली आयत से पढ़ना चाहिए जी। लिखा है फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथागढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथागढ़े में डालकर बंद कर दिया। 1000 साल के लिए शैतान यहाँ पे बंद हो गया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस से पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। आगे सुने जी, चौथी आयत। फिर मैंने तख्त देखा
اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہتے۔ ٹھیک ہے نا، وہ مر جائے پھر بھی زندہ رہے گا، وہ زندہ ہو کر کیا کرتے رہتی؟ 1000 سال تک بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ یہاں پر ذرا تھوڑی دیر رکنا چاہ رہا ہوں۔ جو مردے یہاں پہ زندہ ہوئے ہیں وہ کون سے والے مردے ہیں جو زندہ ہوئے؟ اس کو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں سے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور 50ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک پل میں ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ تو جو مردے زندہ ہو رہے ہیں، جو پہلی قیامت میں زندہ ہو رہے ہیں، کس حالت میں زندہ ہو رہے ہیں؟ کیسے زندہ ہو رہے ہیں؟ غیر فانی حالت میں۔ یہ جو مردے زندہ ہوئے کیسے زندہ ہوئے جی؟ غیر فانی حالت کا مطلب یہ پھر نہیں مرنے کے لیے زندہ ہوئے، یہ جو ہے یہ نور بدن لے کے زندہ ہوئے، یہ جلالی بدن لے کے زندہ ہوئے۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہمارے پست حالی کے بدن کی صورت بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا، جس کے لیے لکھا پہلی قیامت میں جلالی اٹھیں گے، پہلی قیامت میں مسیح کے اٹھیں گے، پہلی قیامت میں وہ اٹھیں گے جو مسیح میں سو گئے، پہلی قیامت میں راست باز جو یسوع کے لہو کے وسیلے سے راست باز ٹھہرے وہ اٹھیں گے، اور اس وقت جو پہلی قیامت ہے اس وقت جو جیتے ہیں وہ کیا ہو جائے گا جی؟ وہ بدل جائے گا۔ جو جیتے ہیں وہ کیا ہو جائے گا؟ بدل جائیں گے۔ کس میں بدلیں گے؟ جلال۔ کس میں بدلیں گے جی؟ جلال میں۔ اور پھر آتے ہیں جی ہم مکاشفہ کے 20ویں باب میں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلی قیامت یہی۔ یہاں پہ جو لکھا نا پہلی قیامت یہی ہے، اور مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ قیامت پہلے ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کا جو معنی بن رہا ہے ایک وہ بھی یہ بنتا ہے کہ پہلے قیامت کوئی دوسری قیامت کوئی اور ہے؟
دوسری کے لیے لکھا ہوا ہے، اس کے لیے پڑھتے ہیں. ایسوں پر ذرا اپنی بائبلوں پہ غور کرنا، دیکھنا کہیں میں غلط نہ پڑھوں. ایسوں پر دوسری قیامت کا، دوسری موت کا. ہاں میں نے صحیح پڑھا. دوسری موت. دوسری قیامت لکھی ہے یا دوسری موت لکھی ہے؟ اور دوسری قیامت نہیں لکھی ہوئی. قیامت وہی جو مسیح میں اٹھ گیا. آمین. اس کے بعد موت، اس کے بعد مصیبت، اس کے بعد سزا، اس کے بعد عذاب جو مسیح میں اٹھ گیا 1000 سال بادشاہی کرنے کے لیے، اس کی قیامت ہو گئی. اور جو دوسرے ہیں جو بعد میں اٹھیں گے، کیا وہ قیامت کے لیے اٹھ رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا بولا گیا؟ لفظ قیامت بولا گیا. ان کے لیے کیا کہا گیا؟ موت. اور جو پہلی قیامت میں اٹھے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کیا لکھا ہے جی؟ ان کے اوپر لکھا ہے ایسوں پر دوسری موت. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے جی. پہلی قیامت، پہلی کو موت نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا؟ پہلی قیامت، دوسری موت. اپنے ذہن کی سوچ کو جو ہے وہ اس دائرے میں لائیں. میں رکا ہوں یہاں پہ. پہلی قیامت، اب میں یہ کہنا لگتا ہوں پہلے قیامت، بعد میں دوسری موت. دوسری موت. یہ جو موت والے ہیں نا دنیا میں، وہ برگزیدہ تو تھوڑے ہیں نا. جو تنگ دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، جو سکڑے رستے سے چلتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، جو سیدھی راہ پہ چلتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، جو مسیح پر ایمان لے آئے اور زندگی میں داخل ہوئے ان کے لیے کتاب مقدس کہتی ہے تھوڑے ہیں. اور جو چوڑے دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہ بہت ہیں، جو چوڑے رستے پر چلتے ہیں وہ بہت ہیں، جو انسان کے اعتبار سے چلتے ہیں وہ بہت ہیں، جو روح کے اعتبار سے جیتے ہیں وہ تھوڑے ہیں. اس لیے دنیا نے یہ جو موت ہے نا، اس کو اپنے لیے قیامت جو کہتے ہیں نا، وہ اس موت کو اپنے لیے کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ دوسری موت. ایک تو پہلی موت ہے. پہلی موت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بندہ جو اس جہان میں مر جاتا ہے. اس کے بعد جو تو قیامت میں، پہلی قیامت میں مسیح میں آ گئے، جن کے جو تو قیامت میں آ گئے، ان کے اوپر تو دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں. ان کے اوپر دوسری موت کا. اور یہ جو دوسرے اٹھے ہیں ان کے حساب ہوں گے، اور ان کے حساب کے مطابق ان کو کیا دی جائے گی جی؟ سزا دی جائے گی. اور ہمیشہ تک یہ آگ میں ڈالے جائیں گے. میں اس کو ذرا آگے پڑھ رہا ہوں. جی 11ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہوا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات. اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا،
वो आग की झील में डाला गया। यानी आग की, एक तो बंदा अभी मरता है, वो तो होगी पहली मौत, और जो तो क़यामत में आ गया, मसीह में आ गया, उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मसीह में आके जलाल में उठ गया, वो तो उठ गया। फिर जब बाकी मुर्दे जिंदा हुए, किसके लिए जिंदा हुए? दूसरी मौत के लिए जिंदा हुए। उसको क़यामत नहीं कहा गया, उसको क़यामत नहीं कहा गया, उसको क्या कहा गया? मौत कहा गया। हमारे लिए क़यामत हमारा मसीह, मसीह। और मसीह जब कब्र में से निकला ना, जिंदा हुआ जलाली बदन में, तो बदन का जलाल को पहन लेना क़यामत है। जलाली हालत में बदन का उठना क़यामत है। बदन का नूर में उठना क़यामत है। इस दुनिया की खराबी और अजाब से छुटकर सादे इलाही में बदन समेत शरीक हो जाना, बका का बदन का, बका का जामा पहन लेना क़यामत है। इसीलिए मसीह जब जलाल में उठा तो हम उसको कहते हैं ईदे क़यामते मसीह। ईदे क़यामते मसीह वो ईद है जब बशरियत अलूहियत में दाखिल हो गई। मसीह ने हमारी बशरियत को लिया, उसको उसने अलूहियत में दाखिल कर दिया। मसीह ने बशरियत को लिया, उसको उसने नूर और जलाल में दाखिल कर दिया। मसीह ने इंसान को लिया और उसको उसने खुदा में दाखिल कर दिया, और ये खुदा में जाना, ये हमारी क़यामत है। बड़ी ईद। इस ईद में क्या हुआ जी? बदन जो है वो कहां पे चला गया? जलाल में चला गया। बड़ी ईद मनाते हैं। ये बड़े जबरदस्त मौके के ऊपर आपने जो है ये मज़मून रखा जी कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जब ईद क़यामत मसीह जो है उसको मना रहे हैं तो याद रखना जी, हम तो क़यामत की ईद मनाते हैं। क़यामत हमारे लिए ईद, क़यामत दुनिया के लिए मुसीबत और अजाब, क़यामत हमारे लिए ईद, क़यामत हमारे लिए खुशियां, क़यामत हमारे लिए इत्मीनान, क़यामत हमारे लिए हमारी अच्छाई। मुझे तो जो मेरे अंदर भरा हुआ है उसके लिए मुझे बोलने के लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे। हमारे लिए क़यामत कैसी मुबारक है, कैसी मुबारक है। इसलिए हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं ईद क़यामत मसीह। और हम जानते हैं कि मसीह जो हुआ तो फिर नहीं मरने का, और फिर इसमें वो तो अबदियत में बदन को लेके पहले भी वो इलाही शख्स है, वो अज़ली और अबदी है। जब उसने बदन लिया तो बदन को भी वो जो है वो लेके वो कहां पे चला गया? अबदियत में चला गया। वो नूर में लेके चला गया, जलाल में लेके चला गया, अलूहियत में लेके चला गया उस बदन को। और हमारे लिए भी उसने ये राह खोल दी और लिखा इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो, जिंदा समझो। और याद रखना जी, जब हम ईद क़यामत मसीह मनाते हैं तो इस बात की ईद मनाते हैं कि यीशु जलाल में उठा, और हम भी उसके साथ कहां पे उठे जी? जलाल में उठे। अच्छा, कुछ लोगों को गवाही के लिए कि ये कोई ये ना कहे कि जो सिर्फ यीशु चूंकि खुदा का बेटा खुदा है इसलिए वो जलाल में उठा, औरों को भी जगाया गया जी जलाल में।
यीशु जब मसलूब हुआ उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दी, तो लिखा बड़ा भूचाल आया, हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, चट्टानें तिड़क गई, देखा कब्रें खुल गई और बहुत से मुकद्दसों के जिस्म, रूहों की बात नहीं हो रही वहां पे, पढ़ लेना जी इसको जाके, जब वो कलमे सुनाए जाएंगे ना, आखिरी कलमा सुनाया जाएगा तो वहां पे ये बयान भी पढ़ा जाएगा। बहुत से मुकद्दसों के जिस्म जो सो गए, किनके जिस्म? मुकद्दसों के जिस्म जी उठे और यीशु मसीह के कब्र में से निकलने के बाद वो जी उठ के कब्रों से निकल नहीं गए जी, क्योंकि मुल्कों में से जी उठने वालों में पहला यीशु मसीह हो, वो जी तो उठे, रहे कहां पे? कब्रों में। जी उठने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद कब्रों में से निकले और मुकद्दस शहर को गए और बहुतों को नजर भी आए, बहुतों को नजर आए। उसके बाद नजर आना बंद हो गए, किधर चले गए जी? हाँ, कैदी रूहों को वो क्या किया जी? वहां पे वो भी, उनको भी, कैदी रूहों को भी ले गया, अपने साथ ले गया, और ये जो जी उठे इनको भी वो जी उठने के बाद कहां ले गया? अपने साथ वो ले गया जलाल में, और भी हमारी गवाही के लिए उठे और हमारा अभी बदलना, इस बदन का, जिस्म का। रसूल कहता है हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले आप अपने बदन में कराते और इस बदन की मखलसी की राह देखते हैं। भाई ईद मनाओ कि हम जलाल में दाखिल हो गए यीशु मसीह के साथ, ईद मनाओ, लेकिन इस बदन में कराते कि ये बदन कब बदलेगा, कब जलाली हो जाएगा, कब मैं जलाल में दाखिल हो जाऊंगा बदन समेत। और जब बदन जलाल में दाखिल हो गया तो ये आलम से निकल के फिर तो हम गए जी, कहां पे गए? आलम वाला पर मसीह के साथ, मसीह के साथ। अभी भी हमें मसीह के साथ जलाया, बाइबल मुकद्दस ये बात कहती है, हम अपनी रूह में, ईमान में उसके साथ जलाए गए और बदन का जलाया जाना 1000 साला बादशाहत में हो। अगर मर भी गए होंगे ना मसीह के आने से पहले तो क्या होगा जी? गैरफानी हालत में वो उठा लेगा, उठो बादशाही करनी है, जिंदा को बदल देगा, मुर्दों को क्या कहेगा? उठो बादशाही करनी है। और जितने खुदा के बेटे की आवाज, जितने मुर्दे, जो मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, लिखा हुआ वो जी उठेंगे और उठकर 1000 साल तक बादशाही करते रहेंगे। और जलालियों ने बादशाही करनी है, और जलालियों की जलाल वाली ईद, वो क़याम रखने वालों की ईद क़यामत मसीह, वो जो है वो आ रही है। इसी सोच से मनाना, इसी सोच से मनाना, हमें मसीह में क़यामत मिल गई। ठीक है जी, क़यामत पहले हो गई, पहली क़यामत असल में हमारी है। हम कहां पे दाखिल हो गए? हम जो है वो खुदा के आराम में दाखिल हो गए। ठीक है जी। और दूसरी को कहा गया, फिर क़यामत नहीं बोला गया, फिर क्या दिया गया जी? मौत, मौत। फिर जो है वो दूसरी जो है वो क्या होगी? जो दूसरे जिंदा होंगे वो मरने के लिए, दोबारा अज़ाब में हमेशा के लिए जलने के लिए, जिनके नाम किताबे हयात में लिखे हुए नहीं। अच्छा, किताबे हयात में नाम को जरा मैं एक रुख से सादा कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए हमारे लिए हयात कौन है? मसीह। जो मसीह में है, जो मसीह में है वो क्या है? उसका नाम किताबे हयात में है। जो मसीह में नहीं उसका नाम किताबे हयात में भी नहीं है। हमारी क़यामत जो है वो यीशु मसीह है। इसलिए वो जो चाहे हो जाता है, वो जो चाहे हो जाता है। बेशक उसने 4 दिन का मुर्दा इस आलम में जिंदा किया, इसलिए इस आलम में जिंदा किया
کہ ابھی جو ہے وہ خود قبر میں سے جلالی بدن کی حالت میں سے نہیں نکلا تھا، اب جب وہ سب کو زندہ کرے گا تو کس میں اٹھائے گا؟ جلال کی حالت۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ بہت کچھ ہے ابھی کہنے کے لیے، بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن یہ جو چند باتیں میں نے آپ کے بیچ میں کہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضروری والی باتیں ہیں، یہ بڑی ضروری والی باتیں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھو اور ہمیشہ کبھی بھی مصیبت کو قیامت نہیں کہنا۔ ہم فرق ہیں، ہم نے کس کو قیامت کہنا ہے؟ جلال کو۔ ہم نے کس کو قیامت کہنا ہے؟ مسیح کو۔ ہم نے کس کو قیامت کہنا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کو۔ ہم نے کس کو قیامت کہنا ہے؟ ہم نے اطمینان کو۔ ہم نے کس کو قیامت کہنا ہے؟ ہم نے تسلی، جو خدا کی تسلی ہے، خدا کی تسلی، خدا کا اطمینان۔ ہماری تو قیامت وہاں پہ خدا میں ہے نا، جو اطمینان کا چشمہ، جو تسلی کا چشمہ، جو صبر کا چشمہ، جو امید کا چشمہ ہے، ہماری تو قیامت وہاں پہ ہے۔ اس لیے ہم قیامت کی عید مناتے ہیں۔ ہلیلویا، تعریف۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں۔